خواتین و حضرات، آج کی اس نشست میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج کی نشست میں ہم رول قدس کے بارے میں کچھ بات چیت کریں گے، اور ہمارے جو یہوہ وٹنس بھائی ہیں وہ رول قدس کو خدا کی ایک سرگرم طاقت سمجھتے ہیں، وہ ان کو ایک شخصیت نہیں سمجھتے۔ تو کتاب مقدس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ کیا رول قدس ایک شخصیت ہے یا نہیں۔ اگر ہم شخصیت کیا ڈکشنری میں اگر ہم اس کی تعریف دیکھیں یا شخصیت سے کیا مراد ہے، تو ایک ایسی چیز جس کے اندر اپنی مرضی ہو اور جو اپنے جذبات رکھتی ہو، اس کو ہم شخصیت کہتے ہیں۔ میرے ساتھ آج پھر بھائی شراز موجود ہیں، میں ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں۔ جی شراز صاحب، آپ کا بھی خیر مقدم۔ جی جوزف بھائی، بہت شکریہ، خدا آپ کا برکت دے۔ اور سننے والے معزز صارفین کو بھی میں کی خدمت میں بھی میں سلام پیش کرتا ہوں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند آپ کو برکت دے۔ جی جوزف بھائی۔ جی بہت شکریہ شراز بھائی۔ اچھا، تو ابھی گفتگو کو آگے مزید لے کر چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آیات دیکھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں جب یسوع مسیح نے روح القدس کا شاگردوں کو بتایا تھا۔ یہ یوحنا کی انجیل 14 باب اور اس کی 26 آیت میں ذرا دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح روح القدس کو کس طرح سے ایڈریس کرتے ہیں۔ یہاں پر جو لکھی ہوئی ہے بات 26 آیت میں لکھا ہے، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ صرف ایک سرگرم طاقت ہو تو سرگرم طاقت کیسے کسی کو کچھ سکھا سکتا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ وہ کسی کو کیسے کوئی چیز یاد دلا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخصیت ہے تو صرف وہی یاد بھی دلا سکتا ہے اور سکھا بھی سکتا ہے۔ جی شراز بھائی، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ جی جوزف بھائی، جہاں تک تو آپ نے بات کی ہے یہ ہوا وٹنس والوں کی کہ وہ روح القدس کو ایک سرگرم طاقت کہتے ہیں، یا یہ ہوا خدا کی ایکٹیو فورس مانتے ہیں، جبکہ ان کی دلیل، ان کے دلائل اور ان کی باتیں سراسر غلط اور خدا کے کلام میں سے ثابت نہیں ہوتی۔ اور بڑا اچھا ریفرنس آپ نے کوٹ کیا کہ یوحنا کی انجیل 14 باب میں، اگر اسی چیپٹر کو آپ آگے بھی پڑھیں گے نا، تو خداوند یسوع مسیح روح القدس کے تعلق سے بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، ٹھیک ہے، باپ میرے نام سے بھیجے گا، اور وہ آنے والی وقت کی خبریں مجھ سے جان کر تمہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو آنے والے وقت کی خبریں، آنے والے وقت کی باتیں وہ خداوند یسوع مسیح سے جان کر دیتا ہے، یعنی کہ ہم تک آج جو باتیں اور جو کلام روح القدس کے وسیلہ سے پہنچتا ہے، اگر وہ روح القدس ایک فورس ہوتی ہے، ایک سرگرم طاقت ہوتی، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ روح القدس جو ہے وہ کیسے اس طرح کے کام کر سکتا ہے کہ آنے والے وقت کی باتیں جو ہیں ہمارے تک پہنچائے؟ ٹھیک ہے، اگر یوحنا کی انجیل اور اس کا اگر آپ پڑھیں گے نا کہ 15 باب، 15 باب کی میں آپ کے لیے 13 آیت سے پڑھ دیتا ہوں جوزف بھائی، آپ کی بات اور زیادہ کلیئر ہو جائے گی۔ لکھا ہے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا۔ آمین۔ جوزف بھائی، یہاں پر جو بات خداوند کا ہے کہ وہ آنے والی وقت کی خبریں مجھ سے لے کر دے گا، اور یہ کوئی فورس نہیں دے سکتی، جبکہ وہ شخصیت ہے، پرسنالٹی ہے۔ آگے ہم بات کریں گے کہ روح القدس بات بھی کرتا ہے، روح القدس جو ہے مطلب انسانوں کو اٹھاتا بھی ہے، روح القدس ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی شخص کو جو ہے ٹرانسفر بھی کر دیتا ہے، وہ ضرور ہم ایویڈنس دیکھیں گے۔ تو پھر میں ایک طرف سے ایک دفعہ یہوہ وٹنس والوں کی بات کروں گا، ان کے عقائد، ان کی تعلیم، کوئی بھی تعلیم خدا کے کلام میں سے ثابت نہیں ہوتی۔ اصل میں ہمارے سننے والے صارفین جو ہیں یہ کہتے ہوں گے کہ یہ دوسرے بدعات کے بارے میں یا جو کلٹ ہے مسیحیت میں سمجھا جاتا ہے ان کے تعلق سے بھی بات کرتے ہیں۔ تو ہمارا اصل میں مقصد یہ ہے
کہ ہم ایسے لوگوں کو، ایسی تعلیمات کو ایکسپوز کریں جو مسیح کے خلاف اور مسیحیت کے خلاف ہیں، جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے تو ہیں پر ہے نہیں ہیں، بلکہ وہ مسیح کے نام کا ٹائٹل لیتے ہیں، وہ بدعت ہیں، ہمارے درمیان کلٹ ہیں۔ مسیحیت میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک نسور کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہی، لوگوں کو بدعت، ہلاکت کی تعلیم وہ کسی کو دے سکتے ہیں۔ جی جو تو بھائی۔ جی بہت شکریہ آپ کا شراز بھائی۔ اچھا اسی طرح خواتین و حضرات، جب آپ یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب اگر آپ پڑھتے ہیں، خاص طور پر 8ویں آیت اور اسے آگے جب آپ پڑھتے جاتے ہیں، تو آپ کو روح القدس کا مزید پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک شخصیت ہے، ایک پرسن ہے، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ اکثر گرم طاقت جو ہے وہ کبھی کسی کو فیصلہ نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کسی کی ججمنٹ کر کے اس کو قصوروار ٹھہرا سکتی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی شخصیت ہی ہو جو کہ جس میں سمجھنے کی صلاحیت ہو، جس میں ارادہ ہو، اور جو اپنی سوچ اور سمجھ اور اپنی مرضی کے مطابق کسی کو راست باز یا کسی کو گناہ گار ٹھہرا سکے۔ سو یہاں پر روح القدس جو ہے وہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ ایک شخصیت ہے۔ تو اس کے علاوہ ناظرین، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس وہ دوسروں کے ساتھ باتیں کیسے کرتا تھا۔ اگر ہم اعمال کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 29 آیت ملاحظہ کریں، تو ہمیں یہاں پر روح القدس جو ہے وہ لوگوں کو انسٹرکشنز دیتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اس کی 29 آیت میں یوں لکھا ہوا ہے: روح نے فلپس سے کہا کہ نزدیک جا کر اس رتھ کے ساتھ ہو لے۔ اگر یہ سرگرم طاقت ہی ہو، جیسے الیکٹریسٹی ہے، جیسے میگنیٹک پاور ہے، ٹھیک ہے، مقناطیسی قوت ہے، یا کوئی حرارت ہو ہے، یا کوئی پوٹینشل یا کائنیٹک انرجی ہے، اگر اس یا سولر انرجی ہے، سورج کی توانائی ہے، تو جو توانائی ہوتی ہے وہ بات نہیں کرتی اور نہ ہی کسی کو انسٹرکشنز دیتی ہے، لیکن یہاں پر فلپس کو روح القدس نے انسٹرکشن دی ہے۔ تو اس کے علاوہ ہم اگر دیکھیں اعمال 10 باب اور اس کی 19 سے 21 آیت، اعمال 10 باب کی 19 سے 21 آیت میں لکھا ہے: جب پترس اس رویا کو سوچ رہا تھا تو روح القدس نے اس سے کہا کہ دیکھ، 3 آدمی تجھے پوچھ رہے ہیں، بس اٹھ کے نیچے جا اور بے کھٹکے ان کے ساتھ ہو لے، کیونکہ میں نے ہی ان کو بھیجا ہے۔ پترس نے اتر کر ان آدمیوں سے کہا: دیکھو، جس کو تم پوچھتے ہو وہ میں ہی ہوں، تم کس سبب سے آئے ہو؟ سو یہاں پر روح القدس پترس سے بات چیت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ اور ان آدمیوں سے جا کر بات چیت کرو، اور جو وہ آدمی تھے ان کو بھی روح القدس نے ہی بھیجا تھا۔ تو روح القدس یہاں پر ایک پرسن کے طور پر نظر آ رہے ہیں، نہ کہ ایک سرگرم طاقت کے طور پر۔ جی شراز بھائی، آپ کچھ کہیں گے ان آیات کے بارے میں؟ جی جی جوسف بھائی، دیکھیں، ایک جو پرسن ہے، پرسنالٹی ہے، وہی بات کرے گی نا، ٹھیک ہے، جو شخصیت ہے وہ بات کر سکتی ہے، لیکن ایک سرگرم طاقت، ایک ایکٹیو فورس، یہ سمجھ لیں کہ بات کرنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک روح القدس کی توہین ہے، ایسے بات کرنا یا ایسے الفاظ سے روح القدس کو مخاطب کرنا۔ لیکن بس جن لوگوں نے یہ ٹھانی ہوئی ہے، انہوں نے بیٹے کو، روح القدس کو ڈی گریڈ کرنا ہے، ان کی شخصیت یا ان کی ذات اقدس لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنی، تو انہوں نے اسی طرح کی تعلیمات ہے نا، بدعات ہے جنہیں کلٹ کہا جاتا ہے، تو انہوں نے یہی تعلیمات لوگوں میں ٹرانسفر کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، سادہ ایماندار لوگوں کو۔ اچھا جو بھائی، آپ نے جو ریفرنس پڑھا ہے نا ابھی، امال 8 باب، اسی چیپٹر کی اگر آپ 29 آیت کو، 39 آیت کو بھی دیکھیں گے نا، وہاں پر کیا لکھا ہے: جب وہ پانی میں سے نکل کر اوپر آئے تو خداوند کا روح فلپس کو اٹھا لے گیا، اور خواجہ نے اسے پھر نہ دیکھا، کیونکہ وہ خوشی کرتا ہوا اپنی راہ چلا گیا۔ اب دیکھیں یہاں پر روح القدس جو ہے وہ مطلب بزرگ فلپس کو اٹھا کر لے جاتا ہے، ایک سرگرم طاقت ہو یا ایک
एक्टिव फोर्स हो, वो ये काम कैसे कर सकती है? ठीक है, कि रूल कुदस उठाकर फिलिपस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया उसने, ले गया। ठीक है, और फिर ख्वाजा की तरफ से लिखा है कि उसने फिर फिलिपस को ना देखा। तो ये फिर इन यहोवा विटनेस वालों से पूछे बंदा कि ये कैसे हो सकता है काम, जबकि आप एक फोर्स का। अगर जोसेफ भाई हिस्कियल 37 बाब को आप पढ़ेंगे ना, वहां पर भी इसी तरह का काम रूल कुदस करते हुए नजर आते हैं। हिस्कियल 37 बाब उसकी पहली आयत से मैं पढ़ता हूँ। खुदावन का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया, और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया। अब देखें, यहाँ पर भी सेम वही बात हो रही है कि रूल कुदस यहाँ पर बुजुर्ग हिस्कील को उठा कर ले गया और उसे हड्डियों की वादी में जो है छोड़ा रूल कुदस ने, और वहां पर फिलिपस को उठाया, और वहां जहां पर आगे फिलिपस को उसने मतलब काम करने के लिए, मुनादी करने के लिए छोड़ा, वो भी आपको पता है। ठीक है, और यहाँ पर देखें, हिस्कियल को भी रूल कुदस ने उठाया। अगर वो शख्सियत नहीं है, पर्सनैलिटी नहीं है, तो फिर उसने कैसे उठाया? ये काम कैसे कर सकता है रूल कुदस? जी। बहुत शुक्रिया शराज भाई। अभी हम देखते हैं कि रूल कुद्दस जो है उसकी मर्जी भी है। जैसे मैंने पहले ही एक पर्सन की डेफिनेशन में ये बताया था कि उसकी मर्जी होनी चाहिए और उसके जज्बात होने चाहिए। अब इसके लिए हम मुलाहिजा करेंगे पहला कुरिन्थियों उसकी 12 बाब और उसकी आयत नंबर 11। यहाँ पर लिखा है, लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है और जिसको चाहता है बांटता है। सो जिसको चाहता है, सो मतलब रूल कुद्दस अपनी मर्जी इस्तेमाल करता है। इसी आयत को हम देखेंगे यहोवा विटनेस की ट्रांसलेशन से। ये पहला करंथियों इसका 12 बाब और इसकी 11 आयत है। यहोवा विटनेस की ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है, लेकिन ये सब काम इसी एक रूह की मदद से किए जाते हैं और ये रूह अपनी मर्जी के मुताबिक हर शख्स को नेमतें अता करता है। तो इनकी अपनी ट्रांसलेशन में जो लफ्ज़ मर्जी आया है, इससे जाहिर हो जाता है कि रूल कुद्दस के पास अपनी एक विल है, अपनी एक मर्जी है। तो उस हिसाब से रूल कुद्दस एक इन्हीं के बाइबल की ट्रांसलेशन से पर्सन, एक शख्सियत जो है वो साबित हो जाता है। तो वो उसको एक सरगर्म ताकत, महज एक सरगर्म ताकत कहना बिल्कुल गलत होगा। इसके अलावा मजीद हम देखते हैं कि रूल कुद्दस जो है उसके अंदर इमोशंस भी हैं, उसके अपने जज्बात भी। इसके लिए हम देखेंगे का खत इफ्सियों का खत उसका 4 बाब और उसकी 30 आयत। यहाँ पर लिखा है, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो जिससे तुम पर मुखलसी के दिन के लिए मोहर हुई। सो रूल कुद्दस जो है उसको लोग रंजीदा भी कर सकते हैं। रंजीदा का मतलब ये होता है किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को अफसोस दिलाना, या किसी को गमगीन करना। सो इस तरह से रूल कुद्दस जो है उसके जज्बात हैं, और अगर लोग उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलते तो रूल कुद्दस उससे रंजीदा होता है, और ऐसे लोग जो हैं इनको सजा भी मिलती है। फिर मजीद इसको देखने के लिए हम देखेंगे यसाया 63 बाब और इसकी 10 आयत। यसाया 63 बाब की 10 आयत में यूं लिखा है, लेकिन वो बागी हुए और उन्होंने उसके रूह कुद्स को गमगीन किया, इसलिए वो उनका दुश्मन हो गया और उनसे लड़ा। सो खुदा का रूह कुद्स, इसको गमगीन किया गया है, मतलब इसके अपने जज्बात हैं। अमाल 5 बाब में हम एक और किस्सा मुलाहिजा करेंगे। अमाल 5 बाब में एक किस्सा यूं लिखा है, और एक शख्स हननिया नाम और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची, और उसने अपनी बीवी
कि जानते हुए कीमत में से कुछ रख कर छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पाँव पे रख दिया। ये उस वक्त का वाक़या जब मसीही नए नए अभी उनको रूह कुद्दस मिला था, और वो एक गिरोह की सूरत में एक ही जगह रहते थे, और सब के सब लोग जो है वो अपनी जायदादें बेच कर शागिर्दों के हवाले जितने भी पैसे थे वो कर रहे थे, ताकि सब लोग जो हैं उन्हीं पैसों में से गुजर बसर कर सके। सो आयत नंबर 3 में लिखा है, मगर पतरस ने कहा, आए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूल कुद्दस से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े। तो ये हननिया और सफीरा एक कपल थे जिन्होंने अपनी जायदाद बेची, लेकिन अपने पूरे जो रकम थी जायदाद बेचने की, वो पतरस के हवाले नहीं की, बल्कि उसमें से कुछ रख छोड़ी। पतरस ने उनको कहा, जब उनको कन्फ्रंट किया तो उनसे पूछा कि रूल कुद्दस से तुमने झूठ क्यों बोला है। झूठ उसी से बोला जाता है जो एक शख्सियत होती है। इसको मजीद देखें चौथी आयत में, क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी, और जब बेची गई तो तेरे अख्तियार में ना रही। तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला है। सो चौथी आयत में रूल कुद्दस को ना सिर्फ एक पर्सन बल्कि खुदा भी कहा गया है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और उसका दम निकल गया, और सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। सो फिल फॉर रूल कुद्दस ने इस शख्स को सजा दी, ताकि दूसरे लोग जो हैं वो भी नसीहत पकड़े। तो रूल कुद्दस इन आयतों से भी हमें एक शख्सियत नजर आता है, और एक खुदा जो पतरस ने उसको कहा गया है वो भी वाज़े तौर पर नजर आता है। जी शराज भाई, आप क्या कहेंगे? जी जी जोसेफ भाई, बिल्कुल आपने बात ठीक की कि रूल कुदस खुदा और शख्सियत के तौर पर नजर आता है। तो असल में यही बात मैं करना चाह रहा था कि अब ये देखें, हमारे ही साथ होते हैं कुछ भाई ऐसे सैनिक, ठीक है, जो रूल कुदस को तो खुदा की रूह मानते नहीं है। जब कहते हैं उनसे बात हो तो जी किधर लिखा है कि जी रूल कुदस खुदा की रूह है। लेकिन जब उन्हें रेफरेंस दिए जाते हैं, दलील दी जाती है, फिर उनके पास कोई जवाब नहीं होता। वो सिर्फ करते क्या हैं कि अपने अकायद को साबित करने के लिए, अपनी तौहीद को साबित करने के लिए, वो भी जो है रूल कुदस को और खुदावंद यीशु मसीह को डिग्रेड करते हैं। ठीक है, और इसी तरह यहोवा विटनेस, कुछ और भी ऐसी बेदात और कल्ट हैं जो इस तरह की तालीमात, इस तरह की बेदात जो है वो रखते हैं, जो खुदा के कलाम के अगेंस्ट है, बाप बेटा और रूल कुदस के अगेंस्ट है, उनके खिलाफ है। तो ऐसी तालीमात को पर बात करनी और उनके अकायद को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। जोजो भाई, अगर आप पहला करंथियों उसकी 11 बाब और उसकी 19 आयत को पढ़े ना, वहां पर लिखा है 19 में, क्योंकि तुम में बिदतों का होना जरूर है, ताकि वो जाहिर हो जाएं कि तुम में मकबूल कौन से हैं। और ये लोग सिर्फ गलत तालीमात, गलत बिदात, लोगों को गुमराह करने की, इसी वजह से ये लोग ऐसी तालीमात को बयान करते हैं और रखते हैं कि खुदा के कलाम को ये गलत तरीके से लोगों तक पहुंचा सके, गलत एंगल से, गलत सोच से, और जितने अपनी ग्रुप को, अपनी तालीमात को, अपनी बेदात को ये लोग बढ़ा सके, जितने से ज़्यादा लोगों को गुमराह कर सके। जब कि देखें, हमें बाइबल मुकद्दस कंसेप्ट जो है वो पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक नज़र आता है कि बाप बेटा और रूल कुदस की तालीम है, और जो सही तालीम है बाइबल मुकद्दस की। लेकिन जिन्होंने नहीं मानना, उन्होंने नहीं मानना। और मजे की बात यह है कि वो ईमान तीनों पर ही रखते हैं, बाप पर भी, बेटे पर भी और रूल कुदस पर भी। लेकिन कबूल एक को करते हैं, और यीशु मसीह को क्या कबूल करते हैं? महज एक इंसान, एक मखलूक, ठीक है। लेकिन रूल कुदस को क्या कबूल करते हैं? बल्कि खुदा की एक कुव्वत है, दूसरा मददगार है। इससे ज्यादा वो रूल कुदस को मानते ही नहीं है, जबकि पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं, फिर भी कबूल नहीं करते। कबूल करने वाला दिल नहीं है उनके पास। अपने अकायद को साबित करने के लिए इतनी भी गुमराही नहीं होनी चाहिए कि खुदा के कलाम को ही रद्द कर दें। और ऐसे लोग, मैं दावा करता हूँ कि पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक कलाम को मानने का दावा ज़रूर करते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। वो खुदा के कलाम की तौहीन करते हैं, और जो उनका दावा है वो झूठा है।
जोधो भाई, एक मैं रेफरेंस पढ़ता हूँ। इब्रानियों का खत, उसका 3 बाब और उसकी 7 आयत। लिखा है, पर जिस तरह के रूल कुदस फरमाता है, अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, जिस तरह खुद गुस्सा दिलाने के वक्त आजमाइश के दिन जंगल में किया गया था, जहां तुम्हारे बाप दादा ने मुझे जांचा और आजमाया और 40 बरस तक मेरे काम देखे। इसलिए मैं उस पुष्ट से नाराज हुआ और कहा कि इनके दिल हमेशा गुमराह होते रहते हैं और उन्होंने मेरी राहों को नहीं पहचाना। अब जो भाई यहाँ पर जो बात हो रही है वो रूल कुदस फरमा रहे हैं, और ये कौम बनी इसराइल के तलक से बात हो रही है। अगर इसी आयत को आप ज़बूर की किताब में भी पढ़ेंगे, वहां पर खुदा बाप जो है वो इस बात को बयान कर रहे हैं। तो वो कौम जो है वो 40 बरस तक मैं उनसे बेजार रहा और वो मेरे आराम में दाखिल न होंगे। और उसी बात को यहाँ पर रूल कुदस भी बयान कर रहा है कि वो 40 दिन जो है, 40 साल तक जो है मेरे आराम में दाखिल ना होंगे। और लिखा है 10 आयत में, इसमें उस पुरुष से नाराज हुआ कि रूल कुदरत नाराज भी हुआ है और कहा कि इनके दिल हमेशा गुमराह होते रहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर, जहाँ तुम्हारे बाप दादा ने मुझे जांचा और आजमाया और 40 बरस तक मेरे काम देखे, यहाँ पर रूल कुदरत ये बयान कर रहा है कि मुझे जांचा और 40 बरस तक वो जो है मेरे काम देखें। अगर एक फोर्स हो, एक सरगर्म ताकत हो, तो वो ये बात कैसे कर सकती है? रूल कुदस। लेकिन यहाँ पर 7 आयत में वाज़ह लिखा हुआ है, पर जिस तरह के रूल कुदस फरमाता है। रूल कुदस अगर एक शख्सियत नहीं है, एक पर्सनैलिटी नहीं है, तो फिर कैसे रूल कुदस फरमाता है? अब ये बंदा इन लोगों से बात पूछे ना, इसकी भी इनके पास दलील नहीं होती, सिवाय इसके के बस वो सुलेमानी जलेबियां घुमाना, और कुछ आता नहीं इन लोगों को। जी जोजो भाई। जी रशीदा साहब, बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, अब हम जो पौलुस रसूल ने कलमाते बरक़ात जब अपनी कलीसिया को दिए, तो उन्होंने किस तरह से उनको मुखातिब किया, इसके लिए हम मुलाहिजा करेंगे दूसरा करंथियों उसका 13 बाब और उसकी 14 आयत। खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा की मोहब्बत और रूल कुद्दस की शराकत तुम सब के साथ होती रहे। सो लफ्ज शराकत जो है, इस पर गौर कीजिए। शराकत वही रखता है जो एक शख्सियत हो, इसको फेलोशिप कहते हैं इंग्लिश में। इसी ट्रांसलेशन को हम यहोवा विटनेस की ट्रांसलेशन से देखेंगे, जो कि यहाँ पर लिख रहे हैं। ये दूसरा करंथियों 13 बाब की 14 आयत है। दुआ है कि हमारे मालिक, एक तो लफ्ज जो खुदावंद है वो इन्होंने निकाल कर मालिक कर दिया है यीशु के साथ, मालिक यीशु मसीह की अजीम रहमत। सो अजीम रहमत और फजल में इनको फर्क नजर नहीं आ रहा, तो इन्होंने लफ्ज जो है फजल के बजाय अजीम रहमत कर दिया है। रहमत जो है इसके अपने लुग़वी मानी होते हैं, लेकिन फजल वो चीज़ होती है जो चीज़ जिस चीज़ के आप मुस्तहिक ना हो लेकिन फिर भी खुदा आपको दे दे, उस चीज़ को फजल कहा जाता है। और किताब मुकद्दस में फजल हमेशा एक इलाही ज़ात ही की तरफ से आता है, डीएटी की तरफ से आता है। तो वो फजल जो है मुकाशवा की किताब उसके पहले बाब में भी अगर देखें तो बाप की तरफ से, बेटे की तरफ से और खुदा की जो 7 रूहें हैं उनकी तरफ से आ रहा है। सो 7 रूहें जो हैं उन पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि वो कौन है। वो दरअसल रूल कुद्दस की एक कंप्लीट फॉर्म है, लेकिन बाप बेटा और रूल कुद्दस की तरफ से ही हमेशा फजल आता है। लेकिन उन्होंने यीशु मसीह की एलुहियत साबित ना हो, इसलिए इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर अजीम रहमत लफ्ज इस्तेमाल कर दिया है फजल के बजाय। आगे देखते हैं, खुदा की मोहब्बत और पाक रूह जो हम पर असर करती है। फेलोशिप में, शराकत में और असर करने में क्या सामाइन आपको फ़र्क नज़र नहीं आता? बिल्कुल। जो लोग उर्दू समझते हैं, इंग्लिश समझते हैं, या जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो यूनानी ज़ुबान में भी जाकर इसको कंफर्म कर सकते हैं कि फेलोशिप रखना, किसी के साथ शराकत रखना जो है वो एक शख्सियत ही करती है। असरअंदाज सिर जो होती है वो आप पर सूरज की रोशनी भी असरअंदाज हो सकती है। सो रूल कुद्दस को जो है ये सही तरीके से बयान नहीं कर रहे, और रूल कुद्दस को महज इस तरह से बयान करते हैं अपनी ट्रांसलेशन में कि जैसे वो कोई शख्सियत नहीं है। मैं इस आयत को फिर से पढ़ता हूं ताकि आप इसको फॉलो करें। दुआ है कि हमारे मालिक यीशु मसीह की अजीम रहमत
खुदा की मोहब्बत और पाक रूह जो हम सब पर असर करती है आपके साथ रहे। मैंने बड़े वाज़ेह तौर पर एक एक लफ्ज़ जो है उस पर गुफ्तगू की है, लेकिन फिर भी मैं इसको जो पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी की ट्रांसलेशन है वहां से पढ़ देता हूँ, ताकि आपको दोनों में फ़र्क नुमाया नजर आए। खुदावंद यसु मसीह का फजल और खुदा की मोहब्बत और रूल कुद्दस की शराकत तुम सबके साथ होती रहे। तो यहाँ पर देखिए, खुदावंद यसु मसीह को फिर से खुदावंद कहा गया है, और रूल कुद्दस जो है उसकी शराकत की बात हुई है। लेकिन यहोवा विटनेस ट्रांसलेशन जो है, खुदावंद की जगह इन्होंने मालिक कर दिया है, और फजल की जगह अजीम रहमत, और जो रूल कुद्दस की शराकत है उसके बजाय इन्होंने लिखा है रूह, पाक रूह जो हम सब पर असर करती है। तो ये बिल्कुल सरासर जो बाइबल की ट्रांसलेशन है उसको भी ये ट्विस्ट करते हैं, ताकि इनकी गलत डॉक्ट्रिन्स जो हैं वो भी किसी तरीके से साबित हो जाए। तो इसके अलावा नाजरीन, हम देखेंगे मत्ती 28 बाब की 19 आयत। बस तुम जाकर सब कौमों का शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। तीनों का जिक्र आया है, और तीनों का नाम एक ही नाम आया है, क्योंकि खुदा जो है वो इकाद खुदा एक ही है। उसके उस खुदा में तीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स हैं, तीन शख्सियात हैं, और ये तीनों को इटर्नल है, अजल से हैं, और तीनों को इक्वल हैं, बराबर हैं एक दूसरे के। इसीलिए रूल कुद्दस, जब यीशु मसीह ने शागिर्दों को ये हुक्म दिया कि आप अंजील की मुनादी करें और बपतिस्मा दें, तो बाप, बेटे और रूल कुद्दस तीनों का जिक्र आया है। जी शराज भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जी जोसेफ भाई, ज़रूर। अच्छा, जोसेफ भाई, अगर यसाया की किताब पढ़े ना, उसका 48 चैप्टर, वहाँ पर खुदा यीशु मसीह खुद ये इरशाद फरमाते हैं कि अब खुदा और उसकी रूह ने मुझे भेजा। बाप ने और रूल कुदस ने जो है वो खुदा यीशु मसीह को भेजा। वहाँ पर वाक़या जो है लफ्ज़ लिखे हुए हैं। मैं रेफरेंस आपके लिए पढ़ देता हूँ। अ, यसाया चैप्टर 43, 48। हम्म, अच्छा जी, लिखा है यसाया चैप्टर 48 आयत नंबर 16। मेरे नज़दीक आओ और ये सुनो, मैंने शुरू ही से पोशीदगी में कलाम नहीं किया, कि जिस वक्त से कि वो था मैं वहीं था, और अब खुदा ने और उसकी रूह ने मुझको भेजा। आमीन। असल में जोजो भाई, ये रेफरेंस मेरा पढ़ने का मकसद ये था, जो लोग रूल कुदस के इनकारी हैं कि जी वो खुदा की रूह नहीं है, एक बतौर मददगार है, उनके लिए मैंने ये रेफरेंस पढ़ा है कि खुदा और उसकी रूह ने, अल्फाज यहाँ पर वाज़ह है कि उसकी रूह ने, खुदा की रूह ने। ठीक है। इसी के तल्लुक पर अगर आप पहला पतरस भी देखें ना, पहला पतरस 4 बाब की 14 आयत में भी लिखा है कि अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो, क्योंकि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर साया करता है। आमीन। यहाँ पर भी और बात क्लियर हो जाती है कि जलाल का रूह यानी कि खुदा का रूह तुम पर साया करता है। जी जोसफ भाई, बात वाज़िया हो जाती है कि खुदा का रूह, जलाल का रूह, रूल कुदस एक शख्सियत है, एक पर्सन है, एक पर्सनैलिटी है। कहीं पर भी हमें वो कोई एक्टिव फोर्स, सरगर्म ताकत नज़र नहीं आती। जो बेदात रखने वाले लोग अकीदे घड़ते हैं, झूठ बोलते हैं, गुमराही और बिद्दत हलाकत की तालीम फैलाते हैं, ऐसे लोगों की तालीम साबित नहीं होती। खुदा का रूह है, खुदा के कलाम जगह जगह उसके शवाहिद दे रहा है, एविडेंस दे रहा है। जी जोसेफ भाई, आप बात करें आगे। जी बहुत शुक्रिया शराज भाई। तो ख़वातीनो हजरात, आज की जो गुफ्तगू है वो आपने सुनी। उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ज़रूर सीखा होगा। और जब कभी आप ऐसे लोगों से जब मिलते हैं जो कि इस किस्म की बिदात और गलत तालीमात जो है मसीहियत में फैला रहे हैं, तो आपको चाहिए कि ऐसे लोगों को आप सद्देबाप करें। अगर आपके कुछ कमेंट्स हो या कुछ आप दूसरे नज़रियात रखते हो,
تو برائے مہربانی اس کو کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، اور جب بھی ہمیں موقع ملا تو ہم ضرور ان کے جوابات دیں گے۔ تو اس ویڈیو کو آپ ضرور شیئر کیجئے تو تاکہ بھائی کیا میں زیادہ سے بات کر زیادہ سکتا لوگ جو ہیں وہ مستفید ہو سکیں۔ جی شراز بھائی، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہوں جوزف بھائی، یہاں پر میں مطلب کہ کچھ لوگوں کو مدعو کرنا چاہتا ہوں، یہ ہوا وٹنس مسینک یا اور کوئی بھی عقائد رکھنے والے جو رول قدس کو جس طرح سے مانتے ہیں وہ کس طرح سے مانتے ہیں، آئے ہمارے پاس ساتھ جوزف بھائی، سوری سر، اچھا میں بات کر رہا تھا کہ ان لوگوں کو انوائٹ کرنا چاہتے ہیں جو رول قدس کو کس طرح سے مانتے ہیں، اپنے عقائد کو، وہ چاہے مسانک جوڈارزم والے لوگ ہیں، یا ہوا وٹنس ہیں، اونلی جیسس ہیں، اینڈ ٹائم میسیج والے ہیں، یا مارمنس ہیں، کوئی بھی آ کر ہمارے ساتھ بات کر سکتا ہے، وہ ہمیں جو ہے میسیج کرے، ٹھیک ہے، تو ہمارے ساتھ ٹاپک اور ٹائم وغیرہ ڈیسائیڈ کر لے، یا آپ سے وہ رابطہ کرے، تو جس طرح بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں اسے مینیج کریں، اور وہ اگر ہمارے ساتھ لائیو بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں، کسی بھی ٹاپک پر بائبل مقدس کی وہ اپنی تعلیم، اپنے عقائد، اپنے دعوے پیش کریں، ہم ضرور ان سے بات کریں گے۔ جی جوزف بھائی، آپ کنٹینیو کریں۔ جی شراز صاحب، بہت شکریہ آپ کو۔ تو بالکل جیسے آپ نے فرمایا، ان لوگوں کو ہم مدعو کریں گے جب بھی کبھی وہ تیار ہوں اس بات پر کہ وہ ہم سے کچھ بات چیت کرنا چاہتا ہے کتاب مقدس کے کسی بھی موضوع پر، تو ہم حاضر خدمت ہیں۔ تو خواتین و حضرات، خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔ تو اس امید ہے کہ آپ نے کچھ سیکھا ہوگا اس ویڈیو سے، تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور ہم پھر سے ملیں گے خدا کے فضل سے نیکسٹ ویڈیو میں۔